So this is the program for addition of two numbers. First instruction is LDA 8500. It means the memory location 8500 data. The data lying at 8500 memory location will be loaded into a accumulator register. So this is your 3-byte instruction because first byte is your opcode, second byte is the upper byte of the address, third byte is the lower byte of the address. Because it needs 3 locations to store the data, then it is known as 3-byte instruction. But always remember, whenever this instruction is stored in memory, then first byte is always the 8-bit opcode corresponding to this mnemonic. Second byte will always be the lower byte of the address, and third byte, which will be loaded into memory, that will be upper byte of the address. Then this is the first number which has been loaded into a accumulator register. Then this is the next instruction, move B, A. What it is doing? It is moving the data from accumulator to B register so that we can take second number into accumulator again. So we have put up we have copied it into a safer register, that is B register. Okay. So this is also your 1-byte instruction, move B, A, because this is only having 1 byte opcode. Then LD8501, again, this is your 3-byte instruction. Why 3-byte? Because first byte is the opcode corresponding to LDA mnemonic. Second byte will be 01, that is lower address of this 8501 address. Then 85, this is the upper address of this 8501 memory location. Then what is the function this instruction is doing? Because in our syllabus, we have to study how to write assembly language programming. So we have to add two numbers. So what is the main concept? That one of the number must be there in accumulator register. So I am putting the second number into accumulator register by writing the instruction LDA 8501. So what this instruction will be doing? It will be storing the memory location data 8501 memory location data to accumulator register. So that stores the second number. And LDA 8500, that stores the first number which has been kept into B register. Second number is kept into accumulator register. Then we will use add B instruction to add these two, because first number is always there in accumulator register by default, and second number will be lying in the register whichever we are mentioning here. If I write move C, A, then I must write it here add C, because first number is in C register and we have to add it with accumulator, that is the second number, which is LDA 8501, which instruction is basically used to load the accumulator. Then what are we doing? STA 8502. Whatever the result comes, that will be stored into accumulator register. And from this accumulator register, I want to store this result to memory with the address 8502. So this is the reverse of LDA instruction. LDA instruction was there to load the content from memory to accumulator. And this is the reverse. It is the instruction which is used to store the content of accumulator to memory. So these are the two reverse instructions. Here memory to accumulator data is getting transferred. Here accumulator to memory data is getting transferred. Okay, so again this is your 3-byte instruction. Why 3-byte? Because 2 bytes for the address, because address is always 16-bit. It is in hexadecimal by default. So it will be 16-bit address. Then STA, this is your 1 byte opcode. It will be having 1 byte opcode. That's why this is 3-byte instruction. Now here the program comes to an end. This is HLT that is used to terminate the program. After this, no instruction will be executed. Now assembler will stop here. Okay. So first of all, whenever we enter this program will be moving to memory first, because microprocessor ने जो भी एग्जीक्यूशन करना है वो किसमें करेगा? वो एक एक बाइट मेमोरी से लेता जाएगा और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. So see here, ये, yes, now you can see, yes, look at here. Now first instruction was LDA 8500. So as we entered that program entered into memory, because microprocessor is not having its own memory. It is not having its own memory. It has to be connected externally with the memory.
Okay, so this is the RAM chip which is lying on the microprocessor system board. ये सिस्टम बोर्ड पे सेंटर में हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है और उसके पास में ही हम एक मेमोरी चिप रखते हैं जिसमें हमारा ये प्रोग्राम स्टोर होता है. और हमें पता है माइक्रो प्रोसेसर इज ओनली अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1. If I am writing over here LDA, it doesn't understand LDA, but it simply encodes that LDA to 8-bit opcode. So corresponding to LDA, this is 3A that will be stored at the location where I want to write the program. It can be decided by the programmer where he or she wants to write the program. So first, at the first instruction is LDA 8500. So it will take 3 locations in the memory. At the first location, it will be storing the opcode, that is 3A, which is used for LDA instruction. Then at the next location, it will be holding lower byte of the address. Next, at the next location, it will be holding the upper byte of the address 85. Have you noted down the program? Please note it down. So first instruction was LDA 8500. Next instruction is move B, A. So that is only 1 byte instruction. It will be having opcode 47. So as you enter the instruction move B, A, accumulator data will be copied to B register after execution of this instruction. So where this instruction will be stored? It will be stored at the next location 8003. It is the opcode of that 1 byte instruction move B, A. Remember, always first byte is the opcode of the instruction. Then after that, next instruction, this is move B, A हमारा हो गया. Then again LDA 8501 because now I want to take the second data to accumulator. Okay, so again next location, this is also 3 byte instruction. It will be using 3 locations 8004, 8005, 8006. 8004 will be holding again 1 byte opcode that corresponds to LDA. This is fixed, this is unique. हर एक इंस्ट्रक्शन का एक यूनिक ऑपकोड होता है. So in the memory always at the first location, this opcode will be stored because it tells microprocessor what operation it has to perform. Then at the next 2 consecutive location, it will be storing the address. It must be 85 here. So this is 01, this is 85. Next instruction is what? That is simply, next instruction is we are simply adding these 2. Next instruction will be add B. So whenever I am doing add B, this is your 1 byte instruction and 88 is the opcode for add B instruction. Then after that, next instruction is STA 8502. STA 8502. So in that case, STA के corresponding opcode, again this is your 3 byte instruction. STA के corresponding opcode क्या होगा आपका 32 और एड्रेस आपका क्या है 8502. तो 8009 में आपका 02 होगा, 800A में आपका 85 होगा. दिस इज ऑल्सो 85, दिस इज ऑल्सो 85 क्योंकि जो हमारा मेमोरी लोकेशन हम यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं 8500 जहां पे पहला नंबर है, 8501 जहां पे सेकेंड नंबर है और 8502 जहां पे हमने रिजल्ट को स्टोर करना है. नेक्स्ट, अब आपको पता है 8009 के बाद हेक्साडेसिमल में 800A आएगा और 800A के बाद नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी 800B, जैसे हम हेक्साडेसिमल में काउंट करते हैं. तो 800B में आपकी कौन सी इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी HLT और HLT का ऑपकोड क्या होता है 76. So this is how we entered the program into memory. Now what happens next? This is 8500, 8501. Now what we have done, we have stored 2 numbers to the memory location 8500, 8501 and 8502 will be giving us the result. Okay. So अगर हमें माइक्रोप्रोसेसर में कोई प्रोग्राम स्टोर करना है और वो प्रोग्राम मेमोरी से डेटा ले रहा है तो हमें ये डेटा भी जरूर लोड करना होगा. तो 8500 से ये फर्स्ट नंबर ले रहा है जिसको वो बी रजिस्टर में मूव करेगा. 8501 से जो ये कंटेंट ले रहा है कम्युलेटर रजिस्टर में वो क्या है आपका 03. फिर ये दोनों ऐड करके ये रिजल्ट हमें 8502 में देगा. देन मूविंग फर्दर, this is where the data is stored. The 2 numbers we are to add 4 plus 3.
this is the memory which is connected to processor. Now I have already told you this is the task of program counter which controls the sequencing of all instructions. जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम की जो सीक्वेंसिंग है वो कौन कंट्रोल करता है? वो प्रोग्राम काउंटर करता है. आप प्रोग्राम काउंटर को जो एड्रेस दोगे, प्रोग्राम काउंटर उसी एड्रेस लोकेशन से इंस्ट्रक्शन फेच करेगा और उसी को ही एग्जीक्यूट कराएगा. ओके, सो फर्स्ट प्रोग्राम काउंटर इज at address 8000. Okay, so it is at address 8000 because first instruction is lying at 8000 memory address. So this address will be held by program counter because program counter is the 16-bit register. This is in hexadecimal, so in bits it will be of 16-bit because one digit corresponds to 4 bits. So there are 4 digits, so it corresponds to 4 into 4, 16 bits. And program counter is basically used to hold the address of next instruction which is to be executed. अभी हमें जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को एग्जीक्यूट कराना है उसका एड्रेस कौन होल्ड करेगा? प्रोग्राम काउंटर. अब ये क्या करेगा प्रोग्राम काउंटर? प्रोग्राम काउंटर ने 8000 होल्ड किया. अब माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस लाइंस पे ये 8000 एड्रेस भेजेगा. जब ये एड्रेस भेजेगा तो मेमोरी लोकेशन 8000 सिलेक्ट हो जाएगी. जब मेमोरी लोकेशन 8000 सिलेक्ट हो जाएगी वहां से ये ऑपकोड फेच करेगा, ऑपकोड को रीड करेगा. ये रीड और राइट सिग्नल जो जनरेट होता है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है माइक्रो प्रोसेसर का. जब वो रीड बार सिग्नल भेजेगा तो यहाँ से कंटेंट आ जाएगा कहाँ पे? डेटा बस पे. और डेटा बस से वो कंटेंट हमारा कहाँ पे जाएगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर में. सो वी विल सी हाउ इट इज हैपनिंग हियर. So program counter is at 8000. Program counter ये एड्रेस भेज रहा है. This is sending 8000 एड्रेस. ये एड्रेस रजिस्टर से 8000 गया, 8000 एड्रेस भेजा, मेमोरी फर्स्ट लोकेशन सिलेक्ट हो गई और यहाँ से इसने ऑपकोड फेच कर लिया. अब हमें पता है ऑपकोड सबसे पहले कहाँ पे आता है? सबसे पहले ऑपकोड आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्योंकि इसकी हमें डिकोडिंग करानी होती है. ये आया हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद 3A की डिकोडिंग होगी. अब इसे पता चलेगा कि इसने एक्यूमुलेटर में डेटा लोड कराना है. डिकोडिंग के बाद ये कहाँ जाएगा? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा कि पहला नंबर 8500 लोकेशन से आपने एक्यूमुलेटर में मूव कराना है. तो अब फिर प्रोग्राम काउंटर किस पे चला जाएगा? 8500. 8500 लोकेशन से ये पहला नंबर उठाएगा 04 और 04 को, अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है. 04 को ये क्या करेगा? 04 को जाके एक्यूमुलेटर में मूव करा देगा. तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपकी एग्जीक्यूट हुई है LDA 8500 आपकी एग्जीक्यूट हो गई. यहाँ पे एक्यूमुलेटर में आ गया 4. अब सेकेंड इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर 8003 पे पहुंच गया. मूव B, A एग्जीक्यूट कराएगा. ये एड्रेस भेजेगा 8003, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में 803 आ गया और यहाँ से 47 उठाएगा. 47 डेटा रजिस्टर में आ जाएगा. ये एड्रेस के लिए, ये डेटा के लिए है. 47 आया और 47 फिर ऑपकोड, ये भी ऑपकोड है. ये कहाँ पे जाएगा? फिर से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. अब इसकी डिकोडिंग होगी. अब इसे पता चलेगा इसने क्या करना है? A का डेटा B रजिस्टर में मूव कराना है. डिकोडिंग हुई. टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा. अब जो हमारा नंबर एक्यूमुलेटर में था वो हम कहाँ पे मूव करा देंगे? B रजिस्टर में. अब ये हो गया आपका A से B में मूव हो गया, तो ये B रजिस्टर में. अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर 8004 पे आ गया. LDA 8501 सेम प्रोसेस. 8004 एड्रेस भेजेगा. 8004 से सबसे पहले ऑपकोड उठाएगा. ऑपकोड आपका जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. फिर उसकी डिकोडिंग होगी. फिर इसे पता चलेगा कि एक्यूमुलेटर को इसने लोड कराना है 8501 लोकेशन के डेटा से. तो फिर ये 8501 लोकेशन का डेटा 8501 एड्रेस भेजेगा, वहां से डेटा उठाएगा और उसको एक्यूमुलेटर में दे देगा. अभी हम क्या कर रहे हैं? सो दिस इज LDA का, ये क्या कर रहा है? LDA 8501 का LDA का ऑपकोड भेजा, उसको डिकोड किया. फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा? नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा. अब 8501 से इसको डेटा कहाँ पे मूव कराना है? A रजिस्टर में. फिर 8501 प्रोग्राम काउंटर ने एड्रेस होल्ड किया. 8501 मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आ जाएगा और ये एड्रेस 8501 से सेकेंड नंबर फेच करेगा और सेकेंड नंबर आपका क्या है? 03.
फिर 03 कहाँ आएगा, पहले मेमोरी डेटा रजिस्टर में आएगा, डेटा रजिस्टर में 8 बिट का डेटा आ गया, so this is 03, then from that it will be simply copied to, so this is copy to accumulator again. अब सेकेंड नंबर आपका accumulator में आ गया क्योंकि अब इसे पता है कि इसने 03 लोड कराना है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 8007 पे ऐड करना है, इसमें 8007 एड्रेस भेजेगा, ऑप कोड को फेच करेगा, 8007 एड्रेस रजिस्टर में आएगा 8007, 8007 से 88 फेच किया, ये क्या है ऑप कोड, फिर से डेटा रजिस्टर में आ गया, फिर से वापस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा। हमेशा याद रखना है कि ऑपकोड हमेशा पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है, फिर डिकोडिंग होगी, फिर ये नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। अब कंट्रोल सिग्नल ये जो जनरेट करेगा, एडिशन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, एडिशन की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तो बी रजिस्टर वाला डेटा पहले टेम्परेरी रजिस्टर में आ जाएगा। अब ये 4 और 3 दोनों को ऐड करेगा अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, तो क्या हो गया 7 रिजल्ट आ गया। ऑल्सो इट विल बी कॉपीड अगेन टू accumulator रजिस्टर, क्योंकि रिजल्ट भी हमेशा ये कहां पे जाता है, accumulator। Also flag register will also be updated in this. Then 8008, अब जो रिजल्ट आया हमें कहां पे लोकेट करना है, 8502 पे। तो 8008 में हम ऑपकोड फेच करेंगे और ऑपकोड एसटीए का क्या है 32 ऑपकोड फेच किया, ये कहां पे जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में अब डिकोडिंग होगी, इसे पता चलेगा accumulator का डेटा इसने कहां पे स्टोर करना है, मेमोरी में, कौन से एड्रेस पे जो अगली दो लोकेशंस पे लाई कर रहा है, 09 और 0A पे, तो ये एड्रेस भेजेगा और एड्रेस अब आपका अपडेट हो जाएगा 8502, प्रोग्राम काउंटर 8502 पे अपडेट हो जाएगा और 8502 पे जाके ये 7 हमारा राइट हो जाएगा। So this is how it is executing the program. Last instruction HLT execute करेगा, 800B एड्रेस भेजेगा, 800B से ये HLT लेगा और HLT का ऑपकोड उठाएगा, that is 76 पहले जाएगा आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, फिर वहां पे उसकी डिकोडिंग होगी, फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को जाएगा और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट नेसेसरी सिग्नल जनरेट करेगा, उसे पता चलेगा कि अब ये इसने क्या करना है, प्रोग्राम को यहाँ पे टर्मिनेट कर देना है। नाउ द प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड एंड दिस विल सिंपली शो यू accumulator is having 07 and also this is the same, the result is also stored into memory. Is it fine? Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, so this is how the actual flow of data, actual flow of codes take place within the 8085 microprocessor. So this is very important for understanding of this process, क्योंकि ये सारा प्रोसेस इसी पे बेस्ड है। हमें एक बार इसका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे हमारा डेटा विद इन माइक्रोप्रोसेसर फ्लो करे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। अब यहाँ पे हम डीमल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं, एड्रेस और डेटा डीमल्टीप्लेक्सिंग। अभी जो मैंने आपको फ्लो दिखाया था उसमें भी यही है, यहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर के BCD, HL, WZ इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं, वो हम यूज कर रहे थे। स्टैक पॉइंटर स्टैक मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करने के लिए यूज होता है, 16 बिट का रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस होल्ड करने के लिए यूज होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच बेसिकली प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली जो इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है उसके लिए यूज होता है। फिर ये एड्रेस बफर जो हमने वहां पे दिखाया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, उसी से कनेक्ट है और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हमारा 16 बिट का एड्रेस होल्ड करता है और मेमोरी डेटा रजिस्टर हमारा 8 बिट का डेटा होल्ड करता है। नाउ दिस इज अगेन एक accumulator रजिस्टर है, एक टेम्परेरी रजिस्टर है। इन्हीं दोनों में पहले डेटा होता है जो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद याद रखना है, अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन के बाद रिजल्ट जनरली हमारा 8 बिट रिजल्ट हमारा accumulator रजिस्टर में आता है। और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट बेसिकली अरिथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, तो याद रखना है कि ऑलवेज दिस फ्लैग रजिस्टर विल आल्सो बी अपडेटेड। So this is all about, now this is the instruction register, this is the non-programmable register, this is also 8-bit register which is always used to hold the opcode. क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर में कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करानी है ये ऑपकोड से ही पता चलेगा कि इसको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर ये LDA का ऑपकोड स्टोर कर रहा है यानी कि इसने accumulator में मेमोरी से डेटा होल्ड करना है और जो मेमोरी एड्रेस है वो 2 नेक्स्ट लोकेशंस पे लाई कर रहा है, तो प्रोग्राम काउंटर उन्हीं 2 लोकेशन से डेटा फेच करके उसको accumulator में लोड कराएगा। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर, यस मैम वो वीडियो में डेटा फेच करना दिखाया नहीं था, तो वो होगा ना?
किसमें, कौन से स्टेप में? मैम वीडियो में जो उसने दिखाया दिखाया था है वो बेटा, सर उसमें दिखाया है मैम डेटा जीरो फेच करना फोर कि 85 नहीं मैम 8500 इंडेक्स जो था वो एड्रेस जो था उसके बारे में तो दिखाया नहीं ना कि लाइक माइक्रो प्रोसेसर को ये कैसे पता चला कि जो लोड करना है एक्यूमुलेटर में वो 8500 से करना है। वो उसी से पता चला, वो उसी से पता चला जब इसने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में दिया ना, इंस्ट्रक्शन एलडीए रजिस्टर में दिया ऑपकोड। ऑपकोड ऑपकोड ये क्या होता है, अभी इसको हम बाद में करेंगे डिटेल में। इंस्ट्रक्शन डिकोडर, देखो यहाँ पे मशीन साइकिल एनकोडिंग, ये जो है ना, ये मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया नहीं है, इसको हम टाइमिंग डायग्राम में डिटेल में करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे सपोज मैं एसटीए का एग्जांपल ले रही हूँ, एसटीए का ऑपकोड यहाँ पे आ गया 32। अब यस जैसे ही इसको 32 मिलेगा डिकोडिंग में, तो ये डिकोडर क्या करेगा, 32 का मतलब ये समझेगा कि इसने एकमुलेटर से मेमोरी में डेटा को स्टोर कराना है, राइट? एकमुलेटर से मेमोरी में स्टोर कराना है। अब मेमोरी के लिए उसको मेमोरी एड्रेस चाहिए, तो ये मशीन साइकिल्स की एनकोडिंग कर लेता है यहाँ पे। जब ये मशीन साइकिल्स की एनकोडिंग कर लेता है तो इसको पता चल जाता है कि इसने मेमोरी एड्रेस को भी फेच करना है। यहाँ पे इसको पता चल जाता है कि ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, पहली बाइट तो ऑपकोड आ गई, अब अगली 2 बाइट्स में एड्रेस रखा है, ये स्टेप यही पे पता चलता है। अब मशीन साइकिल एनकोडिंग में ये क्या करेगा, मेमोरी से वो जो एड्रेस था 85 और 00 जो हमने मेमोरी में 2 लोकेशंस में स्टोर किया हुआ था, यानी कि STA8502, तो 02 आपने एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया हुआ है और अगली लोकेशन में आपने 85 भी स्टोर किया हुआ है। तो यहीं पे एनकोडिंग में इसको पता चल जाएगा कि इसने अगली 2 एड्रेस जो है, जो अगली 2 बाइट्स हैं एड्रेस की उठानी है। फिर वो 8502 ये एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में आ गया था, प्रोग्राम काउंटर ने 8502 होल्ड किया। अब जब प्रोग्राम काउंटर में 8502 आ गया, अब इसने 8502 एड्रेस भेजा। जब इसने 8502 एड्रेस भेजा तो वो मेमोरी लोकेशन हमारी सिलेक्ट हो गई। जब वो मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट हो गई, अब वहां पे या तो डेटा राइट होगा, वहां पे डेटा या तो रीड होगा। ये कंट्रोल सिग्नल इसको यही पे पता चल गया, क्योंकि ये जो ऑपकोड था ये एसटीए का था, तो एसटीए से इसको ये पता चल गया कि एकमुलेटर वाला डेटा ये सिलेक्टेड मेमोरी लोकेशन 8502 में राइट कराना है। तो फिर एकमुलेटर से डेटा गया था बेटा, यहाँ पे 07 था और फिर 07 प्रोग्राम काउंटर 8502 पे था, यहाँ इसने अपडेट नहीं किया था, ये होना चाहिए 8502। तो 8502 एड्रेस पे जाके फिर वो 7 हमारा जाके राइट हो गया था। तो ये डेटा भी दिखाया है इसने, बस इसने 2 जगह इस मिस्टेक थी, इसमें 2 जगह कहाँ मिस्टेक थी कि मेमोरी में जो डेटा स्टोर कर रहा था वो 8500 के बाद 8501 और 8502 एड्रेसेस होने चाहिए, उसने बाद में 8001 और 8002 ले लिया था। इट शुड बी 8501 और इट शुड बी 8502, वो मैंने आपको करेक्ट करके बता दिया था। उसके बाद जो प्रोग्राम काउंटर में लास्ट में जो 8502 अपडेट करना चाहिए था ये भी मिसिंग था। तो वो फ्लो वही है, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का फ्लो है वही सेकंड का, थर्ड का सेम। तो 8502 जैसे ही यहाँ पे आएगा, 8502 एड्रेस पे जाएगा और एकमुलेटर वाला डेटा वो डेटा रजिस्टर के थ्रू उस लोकेशन पे जाके राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप है कि अगली 2 बाइट्स एड्रेस की इसने फेच करनी है, वो कहां से पता चलेगी इसको, यही से मशीन साइकिल एनकोडिंग से। इसमें मशीन साइकिल्स होते हैं, पहला मशीन साइकिल होता है ऑपकोड फेच मशीन साइकिल, जिसमें सबसे पहले वो हर एक इंस्ट्रक्शन का पहले ऑपकोड ही फेच करता है। फिर ऑपकोड फेच करने के बाद इसको पता चलेगा कि इसको और कुछ फेच करना है या यहीं पे प्रोग्राम खत्म हो गया। अगर वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है फिर उसे कुछ नहीं करना, सीधा एग्जीक्यूशन करना है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये एलडीए इंस्ट्रक्शन है, तो एलडीए में इसको पता चलेगा कि ये तो 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि 2 बाइट का एड्रेस होगा। तो फिर ये क्या करेगा, मेमोरी रीड साइकिल लगाएगा। मेमोरी रीड साइकिल पहला मेमोरी रीड साइकिल क्या करेगा, 00 को फेच करेगा मेमोरी से, और वो 00 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एड्रेस, ये प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा। फिर 85 को फेच करेगा, 85 कहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये एड्रेस है मेमोरी का, तो 8500 आपका ये प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा। अब प्रोग्राम काउंटर में 8500 आ गया, अब एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन कैसे होगा, प्रोग्राम काउंटर ने जो होल्ड किया हुआ है 8500 ये एड्रेस भेजेगा, वहां से फर्स्ट नंबर उठाएगा 04, फिर डेटा रजिस्टर के थ्रू डेटा बस से वो फर्स्ट नंबर एकमुलेटर में आएगा। तो यहाँ मशीन साइकिल एनकोडिंग में इसको पता चल गया
कि इसने पहली इंस्ट्रक्शन जो उसका ऑपकोड फेच किया है उसको डिकोड कर लिया और अगली 2 बाइट्स इसने मेमोरी से रीड करना है, वो एड्रेस रीड करना है जो प्रोग्राम काउंटर होल्ड करेगा, और उस एड्रेस से जब ये सेंड करेगा एड्रेस, उस एड्रेस से ये डेटा को एक्यूमुलेटर में लोड कराएगा। ठीक है बेटा? ओके ओके, सो वी कंटिन्यू विद दिस। मैं आपको शेयर कर दूंगी वो एनिमेशन लिंक। उससे बस ये है कि बाद में इसने 8502 अपडेट नहीं किया, बट वो होता है अपडेट, क्योंकि मेमोरी, जिस भी मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट करना चाहेगा प्रोग्राम काउंटर उसी लोकेशन को पॉइंट करेगा। देन आई एम टॉकिंग यू अबाउट एड्रेस डेटा डीमल्टीप्लेक्सिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेस डेटा डीमल्टीप्लेक्सिंग। क्या होता है, अभी मैं आपको एक पिन डायग्राम इसका दिखाती हूँ। यस, यू कैन सी हियर। अभी जस्ट मैं आपको, ये इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर की पिन्स हैं, इसको अभी अगले 2 लेक्चर्स के बाद करेंगे। 8085 माइक्रो प्रोसेसर की पिन्स हैं। ये कौन कौन सी पिन्स हैं? AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7। उसके बाद है A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15। अब आज हम इसका कॉन्सेप्ट करेंगे एड्रेस और डेटा का। अब हमें पता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस का साइज कितना है? कितना है बेटा एड्रेस बस का साइज? 16 बिट। 16 बिट। और डेटा बस का साइज है हमारे पास 8 बिट। 8 बिट। तो अगर मैं इस आईसी में 16 लाइंस में एड्रेस के लिए यूज करूं और 8 लाइंस में डेटा के लिए यूज करूं, तो टोटल मुझे कितनी पिन्स चाहिए? 24 पिन्स चाहिए होंगे एड्रेस और डेटा को कंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये जो पिन्स हैं AD0 से AD7, हमने यहाँ पे इसकी मल्टीप्लेक्सिंग कर दी। मल्टीप्लेक्सिंग होता है कि जब एक ही पिन पे हम 2 फंक्शंस परफॉर्म कर पाए। तो इसी एक पिन पे हम एड्रेस भी रख रहे हैं, इसी पिन पे हम डेटा भी रख रहे हैं। तो एड्रेस और डेटा when both operations कीपिंग द एड्रेस, कीपिंग द डेटा, अगर दोनों ऑपरेशन एक ही पिन पे हम करें, हम कहते हैं कि हमने इसको मल्टीप्लेक्स कर दिया। तो मल्टीप्लेक्स से फायदा क्या हुआ बेटा? फायदा ये हुआ कि नंबर ऑफ पिन्स हमारी रिड्यूस हो गई। नंबर ऑफ पिन्स हमारी रिड्यूस हो गई। नहीं तो हम 24 के लिए हमें यहाँ पे इसकी कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ती। तो हमने क्या किया, 8 लाइंस, जो 8 लाइंस डेटा की हैं, 8 डेटा लाइंस को माइक्रोप्रोसेसर की लोअर 8 बिट एड्रेस लाइंस के साथ मल्टीप्लेक्स कर दिया। तो इन्हीं लाइंस पे हमारा एड्रेस भी है, इन्हीं लाइंस पे हमारा डेटा भी है। तो मल्टीप्लेक्सिंग इसलिए की जाती है ताकि एरिया यूटिलाइजेशन कम हो, नंबर ऑफ पिन्स कम हो, स्पेस यूटिलाइजेशन बेटर हो, उसको इंप्रूव करने के लिए, और ऑटोमेटिकली कॉस्ट फैक्टर भी हमारा रिड्यूस होगा। अगर चिप का साइज कम होगा तो कॉस्ट फैक्टर भी हमारा रिड्यूस होगा। अब हमें क्या करना होता है कि हमने यूज तो कर लिया मल्टीप्लेक्स, लेकिन जब भी हम माइक्रोप्रोसेसर में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, इन एड्रेस और डेटा लाइंस को डीमल्टीप्लेक्स करता है, क्योंकि एट ए टाइम ये एक ही टास्क परफॉर्म करेगा, या तो ये एड्रेस भेजेगा या ये भेजेगा। तो जब ये एड्रेस भेजता है तो उस केस में इसको डीमल्टीप्लेक्स करना जरूरी है। और फिर जब डीमल्टीप्लेक्स हो गया उसके बाद एड्रेस को हम अलग से स्टोर कर लेते हैं और फिर इसी लाइन को हम डेटा बस की तरह यूज करते हैं। तो एक ही बस जो है आपकी AD0 to AD7 जो कि डेटा को कैरी कर रही है, जो कि बिट्स को कैरी कर रही है, यही बस हमारी लोअर बाइट ऑफ एड्रेस को भी कैरी करती है और यही बस हमारी डेटा को भी कैरी करती है। माइक्रोप्रोसेसर को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोप्रोसेसर को दोनों को डीमल्टीप्लेक्स करना जरूरी है, क्योंकि इसे पता होना चाहिए कि अभी इस बस पे एड्रेस आया है और अब इस बस पे डेटा आया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, एड्रेस लैच इनेबल। ये एड्रेस लैच इनेबल ही सिग्नल है जो बताता है कि अभी इस पे एड्रेस आया हुआ है या अभी इस पे डेटा आया हुआ है। जब ALE सिग्नल 1 होता है तो सबसे पहले
किसी भी ये एड्रेस लाइन, ये जो एड्रेस मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा लाइंस है, सबसे पहले इस पे एड्रेस आएगा। फिर जब ALE आपका 0 हो जाता है तो इसी बस को हम डेटा की तरह यूज करते हैं। अब इसको देखते हैं ये हम कैसे करते हैं, कैसे हम डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस। सबसे पहले आपको ये समझना है एड्रेस बस और डेटा बस में डिफरेंस क्या है। एड्रेस बस हमें पता है माइक्रोप्रोसेसर में 16 बिट का एड्रेस बस है, और एड्रेस बस हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू मेमोरी और आईओ। अब इसमें क्या है कि जो अपर 8 बिट एड्रेस लाइंस हैं, अपर 8 बिट एड्रेस लाइंस बेटा ये तो सेपरेट है, A8 to A15 ये वन डायरेक्शनल ही रहेंगी। लेकिन जो आपकी लोअर एड्रेस लाइंस हैं, यहाँ पे हमने 0 से 7 शो किया, AD0 से AD7, इसका मतलब ये बाई डायरेक्शनल इसलिए है क्योंकि इसी बस पे एड्रेस भी है, इसी बस पे डेटा भी है, और डेटा हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, तो ये बस भी बाई डायरेक्शनल होना जरूरी है। तो AD0 से AD7 ये आपका बाई डायरेक्शनल बस है, और ये कैसे सर्व करता है, ये सर्व करती है A0 से A7 एड्रेस के लिए और D0 से D7 डेटा के लिए, दोनों के लिए सर्व करती है एट द सेम टाइम। लेकिन माइक्रोप्रोसेसर उसका डीमल्टीप्लेक्स बहुत अच्छे तरीके से करता है, इट इज वेरी गुड मेथड। तो वो कैसे करता है इसमें हम नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम में बताते हैं। नाउ अदर 8 बिट एड्रेस, एक तो हो गई अपर 8 बिट एड्रेस A8 to A15, ये तो हो गई आपकी यूनिडायरेक्शनल। और अदर 8 बिट्स कौन सी, जो एड्रेस की A0 से A7 है, वो मल्टीप्लेक्स है किसके साथ, डेटा बिट्स के साथ, कौन सी, D0 से D7। इन दोनों को हमने मल्टीप्लेक्स करके लिख दिया AD0 से AD7। ये हो गई आपकी बाई डायरेक्शनल बस और ये हो गई आपकी यूनिडायरेक्शनल बस। अब उसके बाद ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन दीज लाइंस कैरी द एड्रेस बिट्स ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट, देन ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन दे कैरी द 8 बिट डेटा बिट। तो इन्हीं लाइंस पे शुरू में क्या होता है, हमेशा एड्रेस आता है और बाद में हमेशा इन्हीं लाइंस पे डेटा आता है। In order to separate the address from the data, we can use a latch to save the value before the function of bit changes. अब ये कैसे है, हम इसको इसमें एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे बेटा आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर से 8 बिट की एड्रेस आ रही है, A8 to A15 8 बिट का एड्रेस आ रहा है, ये एड्रेस लाइंस हैं। और AD0 to AD7 ये आपकी क्या है, ये आपकी एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स्ड बस है। अगर ये एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स्ड बस है तो इसको हमें पहले माइक्रोप्रोसेसर को इसको पहले डीमल्टीप्लेक्स करना होता है। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए ये इनपुट किसको देता है, लैच को। लैच इज बेसिकली यूज्ड टू स्टोर द डेटा। यहाँ पे 74LS373 लैच लगा हुआ है और उस लैच में हमारे पास 8 लैचेस है। ये जो लैच है ये आपका 8 बिट लैच है, उसमें 8 लैचेस है। पहला A0 के लिए, दूसरा A1 के लिए, फिर A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये जितनी लाइंस है ना, 8 एड्रेस लाइंस को हमने कंबाइन करके यहाँ पे दिखाया है। ये 8 लाइंस के लिए हमारे पास 8 लैचेस है इसी लैच चिप के अंदर। तो पहले ये क्या करता है, सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर पहले ही मशीन साइकिल में सबसे पहले ALE सिग्नल को एक्टिव कर देता है, ALE सिग्नल को हाई कर देता है। जब ALE सिग्नल हाई होगा, आपको पता है लैच कैसे वर्क करता है, लैच का काम क्या है कि बिट को स्टोर करना, कि अगर ALE 1 होगा तो जो भी इनपुट होगा ये इनपुट इसके आउटपुट में आके स्टोर हो जाएगी। और अगर आप ALE को आप 0 कर दोगे तो लैच का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये ओल्ड वैल्यू को स्टोर करेगा, अब इसका इनपुट से कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो ALE सिग्नल सबसे पहले ये हाई करता है। जब ये हाई करेगा, सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर अर्ली पार्ट में क्या भेजता है, एड्रेस भेजता है। जैसे इसने A0 to A7 एड्रेस भेजा, ये कहां पे आएगा, लैच में। ALE सिग्नल हो गया हाई, तो ये लैच में जाके स्टोर हो जाएगा। हम यहां से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे A0 से A7। अब साथ ही जैसे ही इसने एड्रेस को स्टोर कर लिया,
एड्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब ये क्या करेगा, ALE सिग्नल को जीरो कर देगा। जब ALE सिग्नल को जीरो कर देगा, अब ये ओल्ड वैल्यू को ही स्टोर करेगा, तो लैच के पास क्या होगा, सिर्फ एड्रेस होगा। अब इसका इनपुट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। अगर इसका इनपुट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो अब इस बस को हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं, अब इस बस को हम डेटा बस की तरह यूज कर सकते हैं। अब इसी लाइंस पे अब क्या आएगा, डेटा आएगा। तो या तो ये एकम्युलेटर से डेटा आपने मेमोरी में भेजना है, या मेमोरी से आपने एकम्युलेटर में लेना है, या आईओ डिवाइस में भेजना है, या आईओ से लेना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर टू डीमल्टीप्लेक्स AD0 to AD7 एड्रेस लाइंस। इसने मल्टीप्लेक्सिंग इसीलिए की है, कॉस्ट फैक्टर को कम करने के लिए, एरिया को कम करने के लिए, लेकिन उसको अपने फंक्शन के लिए इसको डीमल्टीप्लेक्स करना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले वो ALE को हाई करके एड्रेस भेजेगा, एड्रेस को स्टोर करा लेगा, और फिर इस बस को ये डेटा बस की तरह यूज करेगा। तो यहाँ डीमल्टीप्लेक्सिंग हुई, एड्रेस को अलग से कर दिया, डेटा को इसने अलग से कर लिया। तो स्टार्टिंग टास्क में, शुरू के फंक्शंस में जो मशीन साइकिल का ऑपरेशन होता है, शुरू का ऑपरेशन हमेशा एड्रेस के लिए होता है, और बाद में इस बस को हम डेटा के लिए यूज करते हैं। क्योंकि एक बार एड्रेस आ गया, ये एड्रेस लैच हो गया, और फिर इस बस को हम क्या करेंगे, डेटा के लिए यूज करेंगे। इसको मैं टाइमिंग डायग्राम में आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से होगा मशीन साइकिल्स का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, demultiplexing the bus AD7 to AD0, or you can say AD0 to AD7. The high order address is placed on the address bus and hold for 3 clock periods. जो आपका हायर ऑर्डर एड्रेस है A8 to A15, A8 to A15, ये तो आपका बेटे सिर्फ अकेला एड्रेस लाइन ही है, इसको तो कुछ डीमल्टीप्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, ये तो ओनली एड्रेस लाइन्स के लिए यूज होता है। ये कितने क्लॉक साइकिल्स के लिए रहता है, ये याद रखना है, ये हमेशा 3 क्लॉक साइकिल के लिए रहता है। ये हम पढ़ेंगे जब हम मशीन साइकिल्स टाइमिंग डायग्राम करेंगे, उसमें हम डिटेल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे। 3 क्लॉक साइकिल्स में हमेशा हमारा हायर ऑर्डर एड्रेस रहता है। उसके बाद जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है, जो डेटा के साथ मल्टीप्लेक्स है, वो सिर्फ 1 क्लॉक साइकिल के लिए रहता है। 1 क्लॉक साइकिल के लिए एड्रेस आएगा बस में, और ALE सिग्नल को 1 करके हम उसको स्टोर करा देंगे। उसके बाद इस बस को हम चाहे डेटा के लिए यूज कर ले। नाउ द लोअर ऑर्डर एड्रेस इज लॉस्ट आफ्टर द फर्स्ट क्लॉक पीरियड। तो फर्स्ट क्लॉक पीरियड में ही रहता है लोअर ऑर्डर एड्रेस, और हम क्या करते हैं, इसको लैच करा देते हैं। दिस address needs to be hold, however we need to use latch। तो ये जो 1 क्लॉक साइकिल के लिए जैसे ही एड्रेस आता है, ALE सिग्नल को 1 करके हम इसको लैच करा देते हैं, कि अब हमें ये पता चल जाता है कि इसने कौन सा एड्रेस लेना है A0 से A7 के लिए। तो एड्रेस AD0 to AD7 is connected as inputs to latch 74LS373, ये 8 बिट का लैच है। ALE सिग्नल कनेक्ट होता है उसकी इनेबल पिन से, एंड OC आउटपुट कंट्रोल पिन हमारी ग्राउंड होती है। आउटपुट कंट्रोल पिन को हम जनरली ग्राउंड ही लेके चलते हैं, क्योंकि वो OC बार होती है उसको एक्टिव करने के लिए, आउटपुट को एक्टिव करने के लिए। ये भी हम लॉजिकल डिवाइसेस में बाद में करेंगे कि 74LS373 का स्ट्रक्चर क्या है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। So this is how it is demultiplexing. This is the detailed diagram of this 74LS373. 74LS373 अभी हमने यहाँ पे एक ही दिखाया है, एक ही लैच दिखाया है, लेकिन एक्चुअली ये AD0 के AD7 के लिए दिखाया है। ऐसे ही AD0, AD1, AD2, AD3, 4, 5, 6 सबके लिए यहाँ पे अलग अलग लैच होता है। तो यहाँ से जब ALE सिग्नल 1 होगा, ये सारे लैचेस को इनेबल होगी आउटपुट, और ये आउटपुट कहाँ पे आएगी, ये आएगी हमारी यहाँ पे A0 से A7 में। और अब इस लाइन को हम किसकी तरह यूज करेंगे, अब इस लाइन को हम डेटा बस की तरह यूज करेंगे, क्योंकि ALE को हाई करके हमने एड्रेस को यहाँ पे सेव कर लिया, लैच में स्टोर कर लिया। अब इस एड्रेस को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, अब बल्कि इस एड्रेस लाइंस, एड्रेस मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा लाइंस को अब हम सिर्फ डेटा की तरह यूज करेंगे, डेटा लाइंस की तरह यूज करेंगे। तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में A8 to A15 ये आपकी 8 एड्रेस लाइंस हैं, ये तो हायर ऑर्डर एड्रेस बस हम इसको बोलते हैं। और जो AD0 to AD7 है, ये लोअर ऑर्डर एड्रेस बस जो है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेटा और
एड्रेस, और इसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग किसके थ्रू हुई? इसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग हुई लैच के थ्रू, और लैच को किसने इनेबल किया? ALE ने। ALE जब हाई होगा तो एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करके एड्रेस को ये लैच में स्टोर कर देगा। जब ALE वापस लो होगा तो इसका इनपुट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये ओल्ड वैल्यू को ही स्टोर रखेगा, और जो इसका इनपुट है अब वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे डेटा आ जाएगा। सो दिस इज सिंपली शोइंग द डेटा लाइंस। देन ऑल्सो यू कैन सी हियर दिस लैच, ये हमारा जो चिप है 74LS373, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें फर्स्ट इनपुट डी होती है, और यहाँ पे देखो आपको क्यू बार दिख रहा है। अगर यहाँ पे क्यू बार दिख रहा है तो अगर आप यहाँ इस एड्रेस लाइन पे 0 भेजते हो तो यहाँ पे क्यू बार आपको 1 मिलेगा। फिर देखो यहाँ पे इसने बफर लगाया हुआ है, ये लॉजिकल डिवाइसेस में हम डिस्कस करेंगे। ये बफर क्या काम करता है? बफर सिंपली ड्राइविंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है। यानी कि यहाँ पे अगर इसने 1 लिया तो फिर से देखो यहाँ पे नोड लगी हुई है, नोड लगी हुई है तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0, और ये 0 आ जाएगा आपका एड्रेस जो आप यहाँ पे इनपुट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी इन्वर्टर लगा हुआ है क्योंकि ये क्यू बार आउटपुट आ रही है, और यहाँ पे भी इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर का इन्वर्ट कर दिया तो वापस आपको वही डेटा मिलेगा जो आपने यहाँ पे इनपुट किया था। तो ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टैंडर्ड है 74LS373 का, कि उसमें क्यू बार आउटपुट ही हमारी दिस ट्राई स्टेट इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होती है। ट्राई स्टेट बफर आप कह सकते हो, बफर इसलिए कह सकते हो लेकिन इनपुट में आपके इन्वर्टर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर आपको 1 जाएगा तो 0 मिलेगा, और 0 ही आपका आउटपुट पे आएगा। इस बफर को इनेबल करने के लिए उसी बार कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे हम 0 देंगे तो 0 देंगे तो उसी बार आपका एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा तो ये आपका बफर एक्टिव हो जाएगा, तो जो इनपुट आएगी वो आउटपुट में ट्रांसफर होगी। बफर का काम यही होता है कि whatever is the input to the given to this particular logical device that will be given to the output। तो इनपुट पे जो 1 होगा वो आउटपुट पे ट्रांसफर होगा, इनपुट पे अगर आप 0 देंगे तो वो आउटपुट पे 0 को ट्रांसफर करेगी। So this is all about demultiplexing of address and data bus. Now this is the control signal here. ये यहाँ पे लैच लगा हुआ है, AD0 to AD7 हमने इनपुट दिया, और यहाँ पे आउटपुट में आपके पास एक्सट्रैक्ट हो गया एड्रेस A0 to A7, ओके, और एड्रेस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। ALE सिग्नल जब 1 होगा तो हमें याद रखना है हमेशा इस पे एड्रेस आता है, और ये एड्रेस लैच हो जाता है। फिर ALE सिग्नल जब 0 होता है तो ये एड्रेस रिस्टोर रहेगा, और इस बस पे अब क्या रहेगा? डेटा रहेगा। तो ये होगा आपका D0 to D7। देन A8 to A15, ये आपकी अपर एड्रेस बस। अब हम बात करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स की। कंट्रोल सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल सिग्नल कौन जनरेट करता है? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट 4 तरह के कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। पहला मेमोरी रीड बार सिग्नल, दूसरा मेमोरी राइट बार सिग्नल, तीसरा आईओ रीड बार सिग्नल, और फोर्थ है हमारा आईओ राइट बार सिग्नल। ये सिग्नल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि इसने मेमोरी से रीड करना है या मेमोरी में राइट करना है, इसने आईओ से रीड करना है या आईओ में राइट करना है। जो 4 बेसिक ऑपरेशन है माइक्रो प्रोसेसर के, जो 4 बेसिक ऑपरेशन है जो वो एक्सटर्नली करता है, वो कौन से हैं? मेमोरी रीड करना, मेमोरी राइट करना, आईओ रीड करना और आईओ राइट करना। अब ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ये कंट्रोल सिग्नल बहुत जरूरी है जो माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है। जब ये कंट्रोल सिग्नल मेमोरी को जाता है तभी वो मेमोरी चिप हमारी इनेबल होती है। ऐसे ही जब मेमोरी राइट बार सिग्नल जाएगा तो मेमोरी चिप आपकी इनेबल भी होगी और उसको राइट बार सिग्नल मिलेगा, तभी वहां से डेटा फ्लो होगा। डेटा का फ्लो तभी होगा जब ये कंट्रोल सिग्नल्स हमारे रिसीव होंगे मेमोरी पे, रीड बार और राइट बार सिग्नल। ऐसे ही आईओ डिवाइस से भी डेटा तभी रीड हो सकता है जब हम कंट्रोल सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर से सेंड करते हैं, और जब माइक्रो प्रोसेसर से राइट बार सिग्नल सेंड होगा तभी आईओ डिवाइस में जाके राइट हो सकता है। डेटा तभी एक्चुअली फ्लो करेगा जब हम कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करवाएंगे फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर पहले कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है, तभी एक्चुअल डेटा फ्लो करता है मेमोरी से प्रोसेसर में, प्रोसेसर से मेमोरी में।
Now, how these signals are generated in 8085 microprocessor? तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर का जो सिस्टम बोर्ड है, सिस्टम बोर्ड में हमारे पास ये 4 इन्वर्टेड नैंड गेट्स लगे हुए हैं, इन्वर्टेड नैंड गेट्स। अब देखो उसमें जो मेमोरी रीड बार सिग्नल जनरेट करना है, मेमोरी रीड बार सिग्नल जनरेट करने के लिए 2 इनपुट्स हैं, IOM बार और दूसरी रीड बार के लिए रीड बार सिग्नल। फिर मेमोरी राइट बार सिग्नल जनरेट करने के लिए हमारे पास 2 इनपुट्स आएगी माइक्रोप्रोसेसर से, IOM बार और राइट बार सिग्नल। फिर IO रीड बार सिग्नल जनरेट करने के लिए हमारे पास इनपुट्स आएंगी IOM बार और रीड बार। फिर IO राइट बार सिग्नल जनरेट करने के लिए हमारे पास सिग्नल्स आएंगे IOM बार और राइट बार। अब इन तीनों पिंस का क्या मतलब है? IOM बार पिन बेसिकली क्या है बेटा, ये डिसाइड करती है कि माइक्रोप्रोसेसर ने मेमोरी से इंटरफेस करना है या IO से। अगर तो ये IOM बार अगर ये 0 सेंड करता है, 0 सेंड करता है तो इसको मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, और अगर ये 1 सेंड करता है तो इसको IO रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब 0 सेंड करेगा तो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए मेमोरी रीड बार या मेमोरी राइट बार सिग्नल जनरेट करेगा, और अगर IO में ये IOM बार सिग्नल पे 1 भेजता है तो ये IO रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए सिग्नल जनरेट करेगा, और उसके लिए ये रीड बार और राइट बार सिग्नल जनरेट करेगा। अब देखते हैं रीड बार और राइट बार। जब भी यहाँ पे देखो ये नोड लगी हुई है, रीड बार सिग्नल का मतलब ये है कि जब भी यहाँ पे 0 जाएगा यानी कि रीड बार सिग्नल एक्टिव है। Whenever it will send 0, it means it will activate read bar signal. ये जो आउटपुट में आपको 0 दिख रहा है ना, ये एक्टिव लो आउटपुट होती है। एक्टिव लो आउटपुट का मतलब कि जब यहाँ पे आपको जो आउटपुट में मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, जब ये एक्टिव होगा तो आपको आउटपुट में 0 मिलेगा। ऐसे ही रीड बार सिग्नल, यहाँ पे भी देखो नोड लगी हुई है, तो मतलब आपको आउटपुट पे यहाँ पे 0 मिल रहा है। यहाँ पे रीड बार से भी आप पता लगा सकते हो कि ये आपका एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल है, ये भी आपका एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल है। अब देखते हैं, मुझे अगर मेमोरी रीड ऑपरेशन कराना है तो मैं IOM बार को क्या रखूंगी, 0 रखूंगी, और रीड कराना है तो रीड बार को भी मैं क्या रखूंगी, 0 रखूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, और ये यहाँ पे नोड लगी हुई है। अगर यहाँ नोड लगी हुई है तो 0 0 से यहाँ पे इनपुट पे क्या आ जाएगा, 1 1। जब ये दोनों 1 1 आ जाएंगे तो नैंड गेट की आउटपुट क्या होती है, 1 1 पे 0। जब ये 0 मिलेगा तो ये एक्टिव लो सिग्नल है, तो ये मेमोरी रीड बार सिग्नल मेरा इनेबल हो जाएगा। तो ये मेमोरी चिप को इनेबल करेगा, और अब इसको रीड बार सिग्नल मिल गया, अब वहां से डेटा हम रीड कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे आपने मेमोरी रीड ऑपरेशन किया, कैसे IOM बार को ये 0 भेजता है, रीड बार को भी 0 भेजता है। जब ये दोनों 0 होंगे तो उस केस में यहाँ इनपुट नोड लगी हुई है, यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 से आउटपुट फिर से 0 मिलेगी। नैंड गेट में जब दोनों 1 होते हैं आउटपुट 0 होती है, जब 0 मिलेगा तो मेमोरी रीड बार सिग्नल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे मेमोरी रीड बार एक्टिवेट हुआ था, किसको कंबाइन करके, IOM बार और रीड बार को कंबाइन करके। अब मेमोरी राइट बार कैसे एक्टिवेट होगा, वो IOM बार और राइट बार को कंबाइन करके एक्टिवेट होगा। देखो यहाँ पे ये पहला सिग्नल तो वही है IOM बार, और दूसरा क्या है, राइट बार सिग्नल। अब क्योंकि मेमोरी राइट है तो IOM बार की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे बार लगा हुआ है, बार यानी कि इसको एक्टिव करने के लिए इसको हम 0 देंगे। मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन के लिए यहाँ से माइक्रोप्रोसेसर 0 सेंड करेगा। जब ये यहाँ 0 सेंड करेगा और राइट बार में भी 0 देगा, जब ये दोनों 0 0 होंगे, इनपुट पे होगा 1 1, इनपुट पे 1 होगा तो आउटपुट पे होगा 0, तो ये मेमोरी राइट बार सिग्नल को एक्टिव करेगा। तो मेमोरी राइट बार सिग्नल कब एक्टिव हुआ, जब IOM बार 0 हुआ और राइट बार भी 0 हुआ। और मेमोरी रीड बार कब एक्टिव हुआ, जब IOM बार 0 हुआ और रीड बार भी 0 हुआ। अब आते हैं IO रीड बार। IO रीड बार आपका एक्टिव कब होगा, जब IOM बार सिग्नल होगा आपका 1 और रीड बार सिग्नल होगा आपका 0, क्योंकि IO जब 1 होता है तब ये IO रिलेटेड ऑपरेशंस करता है। अब अगर यहाँ से 1 आएगा
और मैं इसको दूंगी तो यहाँ 0 मिलेगा, तो मेरा ये सिग्नल एक्टिव नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया, आयो एम बार जहां से आ रहा है 1 वहां पे एक इन्वर्टर लगा दिया। जब यहाँ पे मैं एक इन्वर्टर लगाऊंगी तो मिलेगा 0, 0 से फिर से हो जाएगा 1 और 1, और यहाँ पे आपने रीड बार में 0 रखा है, 0 से हो गया 1, ये दोनों हो गए 1 इनपुट पे। जब ये दोनों 1 हो गए आउटपुट पे 0 मिलेगा और आयो रीड बार सिग्नल आपका एक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आयो रीड बार एक्टिव हुआ, ऐसे ही आयो राइट बार। आयो राइट बार को एक्टिव करने के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आयो एम बार सिग्नल ये आपका होगा 1, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे 1 भेजेगा। जब ये यहाँ पे 1 भेजेगा, यहाँ भी हम इन्वर्टर लगाएंगे, ये हो जाएगा 0, और साथ में ये राइट बार सिग्नल को भी एक्टिव करेगा, 0 भेजेगा क्योंकि ये एक्टिव लो है। जब यहाँ पे 0 जाएगा, यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ 0 मिलेगा, ये दोनों इनपुट्स पे 0 है, यहाँ पे नोड्स लगी हुई हैं, ये हो गए दोनों आपके 1। जब ये दोनों 1 हो गए तो आउटपुट आपकी क्या आ जाएगी, 0। तो ये आयो राइट बार सिग्नल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। So these are all the control signal. ये 4 control signal है, memory read, memory write, IO read, IO write, which is generated by combining these signals. Then IO M bar and read bar are combined, making this as 0. तो memory read bar आएगा। IO M bar और write bar जब combine करते हैं, memory taking this IO M bar signal as 0, then this will be memory write operation. जब आयो एम बार और रीड बार लेते हैं और आयो एम बार को टेकिंग इट एज 1 तो ये आयो रीड ऑपरेशन करेगा, और जब आयो एम बार और राइट बार को लेते हैं और इसको हम सिलेक्ट करते हैं आयो एम बार को एज 1, तो उस केस में इट विल सिंपली डू द आयो राइट ऑपरेशन। रिमेंबर वन थिंग, these two signals can never be high at the same time. Sorry, it cannot be एक्टिव एट द सेम टाइम। एक्टिव मीन्स ये दोनों सिग्नल एक साथ 0 कभी नहीं होते। एट ए टाइम माइक्रो प्रोसेसर ओनली एक्टिवेट्स ईदर रीड बार सिग्नल और राइट बार सिग्नल, या तो ये रीड बार को ही एक्टिव करता है या ये राइट बार को ही एक्टिव करता है। So this is the concept of generation of control signals in 8085 microprocessor and demultiplexing concept of 8085 microprocessor. So I finish here. Any doubt from your side, beta? No. Okay, beta. Okay, I'm taking. Okay, beta. Okay. For any doubt, you can personally text me anytime. अगर आपको लगता है कभी आप उसको रिकॉल कर रहे हैं किसी टॉपिक को, और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेटर है कि हम थोड़ा थोड़ा साथ साथ जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ रिकॉल भी करते रहे, है ना। इवनिंग में आप थोड़ा सा आधा घंटा एक बार जरूर लगाया करो कि आज हमने क्या स्टडी किया, दिन में हमारे क्या क्या लेक्चर्स हुए थे, क्या कंटेंट हुआ, थोड़ा सा मेमोराइज कर लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं आपकी अटेंडेंस देख लूं। हाँ जी बच्चे। मैम लिंक वीडियो का शेयर कर दोगे आप? हाँ मैं कर दूंगी। पीपीटी भी भेज दूं, पीपीटी भी रिकॉल कर लोगे आप लोग? यस मैम। ठीक है, मैं पीपीटी भी भेज दूंगी फर्स्ट यूनिट का जो भी चल रहा है। अभी मैं यही भेजूंगी, फिर अगर इसमें कुछ अपडेट में कई बार क्या होता है ना, साथ साथ अपडेट करती रहती हूँ उसको, अगर कुछ होगा तो लास्ट में दोबारा भेज दूंगी। ठीक है, एक मिनट, मैं अटेंडेंस कैप्चर कर रही हूँ। अटेंडेंस अभी बाद में सबके नाम बोलूंगी, एक मिनट मुझे कैप्चर करना।